أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتفت الساق بالساق. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. ترجمہ کنزُل عرفان. اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. والتفت الساق بالساق. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے. تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک سختی کے ساتھ دوسری سختی جمع ہو جائے گی. یعنی ایک تو دنیا سے جدائی کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی سختی بھی ہوگی، یا ایک تو موت کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں بھی مل جائیں گی. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. ترجمہ کنزُل ایمان. اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے. اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ہاتھ جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا. ترجمہ کنزُل عرفان. اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا. تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاتھ جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کا رجوع اللہ تعالی کی طرف ہی ہے، اور قیامت کے دن بندوں کو آپ کے رب عز و جل کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فلا صدقا. تو کافر نے نہ تو تصدیق کی. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھی. ہاں، اس نے قرآن کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا متکبرانہ شان سے چلا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کفار اسلام کے فروعی احکام پر عمل کرنے کے اس اعتبار سے مکلف ہیں کہ قیامت کے دن ان احکام پر عمل نہ کرنے کا بھی ان سے مؤاخذہ ہوگا. یعنی جس طرح کافر کو ایمان نہ لانے پر سزا دی جائے گی، اسی طرح نماز چھوڑنے پر بھی اسے سزا دی جائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی، اگرچہ دنیا میں کافر پر ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ نماز کی قضا واجب نہیں. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ترجمہ کنزُل ایمان. تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی. ترجمہ کنزُل عرفان. تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. اولا لک فاولا. تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
हमें बताया गया है कि जब ये आयात नासिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा की वादी में अबू जहल के कपड़े पकड़कर उससे फरमाया, औला लका फऔला सुम्मा औला लका फऔला, यानी तेरे लिए खराबी है फिर खराबी है, फिर तेरे लिए खराबी है फिर खराबी है। तो अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम मुझे धमकाते हो? तुम अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम मुझे धमकाते हो? तुम और तुम्हारा रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के पहाड़ों के दरमियान में सबसे ज्यादा मजबूत, जोर आवर और शौकत और कुव्वत का मालिक हूँ। लेकिन चूंकि कुरान की खबर जरूर पूरी होनी थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जरूर पूरा होने वाला था, इसलिए ऐसा ही हुआ और जंग बदर में अबू जहल जिल्लत और ख्वारी के साथ बुरी तरह मारा गया। अबू जहल के बारे में हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत में एक फिरौन होता है और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। अयहसबुल इंसानु अन युतवा सुदा, तर्जमा कंजुल ईमान, क्या आदमी इस घमंड में है कि आजाद छोड़ दिया जाएगा? तर्जमा कंजुल इरफान, क्या आदमी इस घमंड में है कि उसे आजाद छोड़ दिया जाएगा? अयहसबुल इंसान, क्या आदमी इस घमंड में है? इरशाद फरमाया, क्या आदमी इस घमंड में है कि उसे यूं आजाद छोड़ दिया जाएगा? न उसे किसी चीज का हुक्म दिया जाए और न उसे किसी चीज से मना किया जाए, न वो मरने के बाद उठाया जाए, न उससे अमाल का हिसाब लिया जाए और न उसे आखिरत में जजा दी जाए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसे दुनिया में अमरो नहीं का पाबंद किया जाएगा, मरने के बाद उठाया जाएगा, उससे अमाल का हिसाब लिया जाएगा और आखिरत में उसे उसके अमाल की जजा भी दी जाएगी। इससे मालूम हुआ कि हमें बिल्कुल आजाद नहीं छोड़ा गया कि जैसे चाहे जिंदगी गुजारें, जैसे चाहे अमाल करें और अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह और जहां चाहे रहें, बल्कि हमें दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ चीजों का पाबंद किया गया है और कुछ चीजों से मना किया गया है। और जिंदगी गुजारने के लिए हमें एक दायरा कार अता किया गया है, जिसमें रहकर हमें अपनी जिंदगी के अय्याम पूरे करने हैं। और हमारे सामने ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि हमें मरने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना और अपने अमाल का हिसाब देना है और फिर दुनिया में जैसे अमाल किए होंगे वैसी जज़ा भी मिलेगी। लिहाजा अक्लमंदों का तकाजा यही है कि वो खुद को शरीयत की पाबंदियों से आजाद समझकर जिंदगी ना गुजारी जाए, बल्कि जिंदगी जीने का जो तरीका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उसी के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए। इसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। और जो शख्स शरीयत के अहकामात से आजाद होकर जीना चाहता है वो बड़ा बेवकूफ और बहुत बड़ा नादान है कि वो थोड़े से मजे की खातिर हमेशा के लिए खुद को जिल्लत और रुसवाई और इंतहाई दर्दनाक अजाब में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए और उन्हें शरीयत के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। तर्जमा कंजुल ईमान, क्या वो एक बूंद न था उस मनी का कि अगर के गिराई जाए फिर खून की फटक हुआ तो उसने पैदा फरमाया, फिर फटक बनाया तो उससे दो जोड़े बनाए, मर्दो औरत। तर्जमा कंजुल इरफान, क्या वो उस मनी का एक कतरा न था?
वो गिराया जाता है, फिर खून का लोथड़ा हो गया तो पैदा फरमाया, फिर ठीक बनाया तो उससे मर्दों औरत की दो किस्में बनाई। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी, क्या वो मनी का एक कतरा न था। इस आयत और इसके बाद वाली दो आयत का खुलासा ये है कि उस इंसान की औकात कहाँ से है, कहाँ है कि वो तकब्बुर करे और अपने पैदा करने वाले की नाफरमानी करे। जो मनी का वो गंदा कतरा था जिसे औरत के रहम में गिराया जाता है, फिर वो 40 दिन के बाद मनी से खून का लोथड़ा हो गया तो अल्लाह ताला ने उस इंसान को बनाया, उससे इंसान को बनाया, फिर उसके आज़ा को कामिल किया और उसमें रूह डाली तो उस मनी से उसने मर्दो औरत की सूरत में दो किस्में बनाई। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, तर्जमा कंजुल ईमान, क्या जिसने ये कुछ किया वो मुर्दे ना जिला सकेगा। तर्जमा कंजुल इरफान, क्या जिसने ये सब कुछ किया वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर नहीं है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिर, क्या वो कादिर नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत करीमा की तिलावत फरमाते तो कहते सुब्हानक अल्लाहुम्मा बला, यानी ऐ अल्लाह सवल तू हर नुक्सो ऐब से पाक है, क्यों नहीं तू मुर्दों को जिंदा करने पर जरूर कादिर है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप सदका जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।